Hello friends, today in this lecture we are going to discuss capacitors. Okay, I had already started capacitors in the last lecture. Okay, so today I will discuss how to derive the expression for the capacitance of the parallel plate air capacitor. Got it? So let's copy this figure. Copy it. Done? Now note down the considerations. Consider the parallel plate air capacitor, full stop. Let capital A be the area of the plates and small d be the distance between the plates of the capacitor. Full stop. Let plus q be the charge on the capacitor. Full stop. Let vector E be the electric field in the space between the plates of the capacitor, and capital V be the potential difference between the plates of the capacitor. Okay, now look over here. Plus Q is the charge on the capacitor, or plus Q is the charge stored by the capacitor. Now due to the charge on the capacitor, there will exist the electric field between the plates of the capacitor. Got it, sense? Now, on the account of this electric field, there will exist, or you can say that there will exist some potential difference between the plates of the capacitor. Now, say V be the potential difference between the plates of the capacitor. Then this V is written as, say, E multiplied by D. We are using the concept of potential gradient. Okay? Now this E is written as sigma by epsilon. Okay, that is the combination of the thin charge sheets. Now the sigma is written as Q by A. So this E is written as, say, Q divided by A epsilon naught. Okay, place the value of E over there. So we get this V is written as, say, Q divided by A epsilon naught multiplied by 2. It will be the expression for the potential difference between the plates of the capacitor. Got it? Now, we are going to use the definition for capacitance. Clear? Now, note down the statement. Let capital C be the capacitance of the parallel plate air capacitor. Then, by definition of capacitance, the C is written as Q divided by V. Okay? It was the definition for capacitance. Okay? Now, the C is written as Q divided by Q by A epsilon naught multiplied with D. This Q cancelled out. So, the C is written as A epsilon naught divided by D. So friends, it is the expression for the capacitance of the parallel plate air capacitor. It is the expression for the capacitance of the parallel plate air capacitor. Note it down.
The above is the expression for the capacitance of the parallel plate air capacitor. Got it? Okay. Now, note it down. First of all, note it down. Now, if the space between the capacitors is filled uniformly with some dielectric medium. Got it? Now, since in the same air capacitor, if the region between the plates of the capacitor is filled with some dielectric medium, then since in that case the capacitance of the capacitor, it becomes dielectric constant times the capacitance of the parallel plate air capacitor. अब ध्यान से देखिए बेटा, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर and the distance between the plates of the capacitor, also on the permittivity of the medium in between the plates of the capacitor. Now, what will happen if the space of the air capacitor is filled uniformly with some dielectric medium? This way. Okay? Now, let us suppose say epsilon r be the relative permittivity of the medium, or you can say that K be the dielectric constant of the medium between the plates of capacitor. Now, what you are going to do, the area of the plates and the distance between the plates, it remains unchanged. What or which physical quantity changes? It is the permittivity of the medium. Okay? So, in this case, let us suppose, say Cm be the capacitance of the parallel plate capacitor with dielectric medium. Got it? Fine. Copy it.
Come on, make it fast. Done? Now in this case, we are going to say that the Cm is written as, say, A epsilon naught into epsilon r divided by d. Now this epsilon r or k, they are one and the same thing. Relative permittivity or the dielectric constant, they are one and the same thing. So in general you can say it is written as, say, A epsilon naught multiplied with k divided by small d. Got it? Now in place of this, what was this? This was the capacitance of the parallel plate capacitor, parallel plate air capacitor. So the Cm is written as K times of C. Clear? Where what was C? C was the capacitance of the parallel plate air capacitor. Okay, so from it, what do we conclude? We conclude that when some dielectric medium is uniformly filled between the plates of the parallel plate air capacitor, then its capacitance becomes K times, that is dielectric constant times the capacitance of the parallel plate air capacitor. Got it? So from the above, we conclude that the capacitance of the parallel plate capacitor with some dielectric medium is K times the capacitance of the parallel plate air capacitor. Fine. Okay. Copy it. Come on, make it fast. Done? Done? Okay. Now, since expression for capacitance of charged spherical conductor copied.
Yes, so it's done. Now note down the considerations. Consider the spherical conductor of radius r, capital R. Consider the spherical conductor of radius capital R. Let plus q be the charge uniformly distributed over its surface. Full stop. Let V be the potential of the charged conductor. Now this V is written as 1 upon say 4 pi epsilon naught into Q divided by say capital R. Okay? Then says we are going to use the definition for capacitance. In the next line, make a statement. Let capital C be the capacitance of the spherical conductor, comma, then by definition of capacitance, C is written as say Q divided by V. Now we are going to place the value for V over here. So C is written as say Q divided by 1 upon say 4 pi epsilon naught into Q divided by R. Got it? Now the Q and Q cancel out. We are left with the C is written as say 4 pi epsilon naught into say capital R. Now again, the capacitance of the spherical conductor, it depends on, take a look, 4 pi is a number, then comes out permittivity of the medium around the conductor, then comes out the radius of the conductor. So since the capacitance of any conductor, it will depend only on the size of the conductor, charged conductor, as well as the nature of the surrounding medium. Got it, sense? Okay. In other words, in simple words, we can say that the capacitance of any conducting system depends on the dimensions of the conducting system and the nature of the medium around the charged conducting system. Fine? So from here we can say that C is directly proportional to R. C is directly proportional to R. So since if suppose we want to plot a graph for capacitance versus radius, C is plotted over here, R is plotted over here, the graph will be the straight line. It is the graphical variation. Make a statement. Graphical variation of capacitance with radius of the charged spherical conductor. Then you have to copy this graph. The graph will be the straight line. Okay, copy it. Done? Okay, good. Now says comes behavior of the conductor in the external electric field. Now since it is not the derivation, okay? Clear? We are just going to discuss the behavior of
any conductor which is subjected to some external electric field. Got it? Now let us see what happens. First of all, what is conductor? It is that substance in which there exists free electrons. Okay? Clear? Now let us suppose it is the conductor and these are some free electrons which are present inside the conductor. Now since when this conductor is exposed or is subjected, it is subjected to the external electric field. Clear? Then what will happen? This electric field, it will exert the forces on all the free electrons present inside the conductor. What will happen? Electric field exert force on all the free electrons. In the conductor. Fine? Clear? Now, if all these free electrons, they are experiencing the force due to this electric field, then since we had already discussed that whenever the negative charge is subjected to some external electric field, then it always experiences the force in the direction opposite to that of the electric field. So since all these electrons, they are going to experience the electric force in this direction. Got it? Okay. Due to which what will happen? The electrons, they tend to accumulate towards the left face. Okay, that is, they tend to move towards the left face. Due to which what will happen? Their number density at the left face, it becomes very large when compared to their number density which is present on the right face. Clear? बात समझ आ गई बेटा? तो बेटा इसकी वजह से क्या होता है? ये एक नंबर, ये सबसे पहली चीज होती है. इसकी वजह से क्या होता है? सेकेंड, the free electrons accumulates on the left face of the conductor. Got it, sons? अब जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट फेस पर अकुमुलेट होना स्टार्ट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्विंस लेफ्ट वाला फेस स्विंस नेगेटिव पोटेंशियल एक्वायर करता है विद रिस्पेक्ट टू राइट वाला फेस. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये सेकेंड सिचुएशन है. देखिए, लेट अस सपोज से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अकुमुलेट हो गए, तो ये वाला एंड और ये वाला फेस इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये वाला फेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. समझ आ गई बात? मतलब कंडक्टर के जो ऑपोजिट फेसेस हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. ये बात समझ आ गई? तो बेटा इस डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. बात समझ आ गई? अब याद रखें, कंडक्टर के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है? पहला तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई से डिनोट कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन डेवलप हो गया जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? समझ आ गई यहां तक बात? अब इसके बाद क्या होता है कि स्विंस जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट वाले फेस पर अकुमुलेट हो गए थे वो तो हो गए थे. अब इसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो लग रहा था उससे कम लगेगा. क्यों?
क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। क्लियर? जिसकी वजह से बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? लेकिन अकुमुलेशन इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यू रहता है। एक स्टेज आती है तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता। समझ आ गई बात? तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकुमुलेट होंगे, क्लियर, ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, एंड it continues till the electric field inside the conductor is reduced to 0। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स होता क्या है, विद एवरी अकुमुलेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। ओके, स्टेज आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का अकुमुलेशन जो हो रहा था वो रुक जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अकुमुलेट होने थे हो चुके हैं, अब नहीं होंगे, क्योंकि बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझ आ गई ये बात? ओके, कॉपी कर लिया यहां तक? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, when the electric field inside the conductor is reduced to 0, the conductor is said to be polarized। समझ आ गई बात? तो बेटा जब कंडक्टर पोलराइज होगा तो पोलराइज कंडक्टर कैसा होता है? पोलराइज कंडक्टर ऐसा होता है कि एक फेस पर तो इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी ज्यादा होता है, क्लियर, दूसरे फेस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी कम होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स वी कैन से कि एक फेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, दूसरा फेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक फेस पर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है कंपेयर टू द ऑपोजिट फेस। क्लियर? देखिए कैसा दिखाई देता है पोलराइज कंडक्टर। लेट अस सपोज से लेफ्ट वाले फेस पर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है और राइट वाले फेस पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी कम है, तो हम उसको मार्क कैसे करेंगे? हम उसको मार्क करेंगे दिस वे। समझ आ गई बात? ओके, अब क्योंकि ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कंडक्टर का पोलराइजेशन हो गया था, तो कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, 0 हो गया था। अभी लेकिन कंडक्टर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था हमने कि जब हमारे पास चार्ज कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। बात समझ आई? तो परपेंडिकुलर मार्क करना। अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कुछ ऐसे, क्लियर हो गई बात? तो ये पैटर्न होता है।
अब यहां पर बोलेंगे कि व्हेन द कंडक्टर इज प्रेजेंट inside the external uniform electric field, then it undergoes polarization and the electric field inside the conductor is reduced to zero. बस ये सिंपल सी बात बोलनी है. Got it? मतलब ये बोलना है when the ये तो चलिए, ये तो मैंने सीक्वेंस में डाल दिया. जनरल में क्या बोलना है मैं वो लिख के दे देता हूं अभी आपको, आप इसे कॉपी कर लें पहले. डन. बेटा कंडक्टर का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 1 मार्क में पूछा जाए तो क्या लिखना है, वो बोर्ड पे लिखना, उसे लिख के आ जाना. When the conductor is subjected to uniform electric field, it undergoes polarization. Okay, and the electric field inside the conductor is reduced to 0. 1 मार्क में आए तो ये स्टेटमेंट लिख के आनी है, कॉपी करें. डन. जल्दी करिए. अब इसके बाद बेटा डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं. डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दीज आर those substances which does not conduct electricity. ठीक है बेटा, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वैसे ये डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. क्लियर? आप इनको इंसुलेटर भी कह सकते हैं. बात समझ आ गई? These are those substances which does not conduct electricity but transmits electric effects. बेटा अब ये कौन से इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिनको ये ट्रांसमिट करता है? बेटा इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस. बात समझ आ गई? क्लियर? बट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कॉपी करें. These are those substances which does not conduct electricity but transmits electric effects when subjected to the external electric field. ओके, अब ध्यान से समझना. अब ध्यान से देखना बेटा, डाइइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैसे ट्रांसमिट करते हैं. चलिए उससे पहले एक बार देख लें
डाइलेक्ट्रिक्स दो तरीके के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है। तो पोलर में क्या होता है? कुछ ऐसे, मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेटेड आउट होते हैं। ओके, क्लियर? चलिए एक काम करें, शेप भी बढ़िया बना लेते हैं। कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में गैप होता है। नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर आपस में कोइंसाइड करते हैं। ओके, आगे पीछे होते हैं। पल्ले पड़ गई बात? चलिए अब बिहेवियर की बात करते हैं। Behavior of dielectrics in the external electric field। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा। तो स्टूडेंट्स हम एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना। तो बेटा ये सीरीज होने वाली है, फिगर्स की इनको सीरीज में कॉपी करना। पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करेगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इफ दिस डाइलेक्ट्रिक is subjected to some external electric field, तो स्टूडेंट्स ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम EA से डिनोट करते हैं, इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट फिगर है, ये फिगर फर्स्ट है। अब फिगर फर्स्ट में क्या होता है? देखिए, अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दे आर नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर दिखा रहा हूं। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर था, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर था। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये नेगेटिव चार्ज सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, जिसकी वजह से शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर जो बिल्कुल ठीक ऊपर नीचे थे या आमने सामने थे, इनके बीच में हल्का सा गैप क्रिएट हो जाता है, मतलब डायपोल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। ओके, पल्ले पड़ गई बात? ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया हुआ था, नेगेटिव चार्ज ने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया हुआ था।
तो फ्रेंड्स जैसा इस मॉलिक्यूल का बिहेवियर है वैसा सारे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर हो जाता है। समझ आ गई ये बात? ओके, तो ये फिगर फर्स्ट कॉपी कर ले आप। ये बिहेवियर है हर मॉलिक्यूल का, कॉपी करें। फिर मैं सेकंड फिगर स्केच कर रहा हूं, कॉपी कर लिया? ओके, ओके, देखिए यहां पर ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर। ओके, तो बेटा कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस था? कंडक्टर के अंदर फ्रेंड्स बड़े सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये फर्स्ट लेयर है मॉलिक्यूल्स की, ये सेकंड लेयर है मॉलिक्यूल्स की। ऐसे करते करते बड़ी सारी लेयर्स होंगी मॉलिक्यूल्स की। ओके, अब ध्यान से देखिए। अब बेटा ये जो फर्स्ट लेयर है मॉलिक्यूल्स की, इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी एडजेसेंट लेयर के नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कर लेता है। काउंटर बैलेंस कर लेता है मतलब पहली लेयर का पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट लेयर के नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो इफेक्ट कैंसिलेशन है ये थ्रू आउट द मटेरियल ट्रांसमिट होता है, लेयर टू लेयर। ये सेकेंड लेयर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये एडजेसेंट लेयर के पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। मतलब सेकेंड लेयर का जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है या पॉजिटिव चार्ज है वो थर्ड लेयर के नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेगा। इस तरीके से ये इफेक्ट कैंसिलेशन थ्रू आउट द मटेरियल कंडक्ट हो जाता है। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट लेयर का नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है और ये जो लास्ट लेयर का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लेयर का नेगेटिव चार्ज और लास्ट वाली लेयर का पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये अनकैंसल्ड रहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए ये फिगर सेकंड है, कॉपी करें। ये फिगर सेकंड है, कॉपी करें। डन, जल्दी से करिए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होता है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक था, फिगर थर्ड की बात हो रही है। बेटा फर्स्ट लेयर का जो नेगेटिव चार्ज है, लास्ट वाली लेयर का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो अनकैंसल्ड रहते हैं। ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट लेयर पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और लास्ट वाली लेयर पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। वी कैन से कि बेटा डाई इलेक्ट्रिक जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो डाई इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट फेसेस पर ऑपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टेट में डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बोलेंगे कि बेटा डाई इलेक्ट्रिक अंडरगोज पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे यहां पे? ये फिगर थर्ड है।
ये फिगर थर्ड है। क्या बोलेगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस undergoes polarization, okay, when subjected to the external electric field। बात समझ आ गई? Dielectric substance undergoes polarization when subjected to the external electric field। तो इस स्टेज में और जो हमने लास्ट में किया है कि कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका ही पोलराइजेशन हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका भी पोलराइजेशन हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझे उस डिफरेंस को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो अक्युमुलेशन नेगेटिव चार्ज का एक फेज पे तब तक कंटिन्यू हुआ था जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर जीरो नहीं हो गया था। ठीक है, क्लियर? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इंटीरियर में रिड्यूस होकर के जीरो हो गया था, उसके बाद जो बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के अंदर, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा था। बात समझ आ गई? अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है? डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। ठीक है, तो पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ आ गई बात? क्लियर? ओके, अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अंडरगोस पोलराइजेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू व्हिच देयर exists the electric field due to polarization। Okay, there exists the electric field due to polarization which opposes the applied electric field। ये बात समझ आ गई? तो ये फिगर थर्ड समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए बेटा, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बता रहा हूं, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वैसे रेजोनेटिंग स्टेट दिखा रहा हूं। तो पोलराइजेशन की वजह से कंडक्टर के इंटीरियर में, पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। ठीक है, ओके। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, उसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात? तो इसको बोलते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पल्ले पड़ गई बात? अब बेटा डाइलेक्ट्रिक के इंटीरियर में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन डेवलप हुआ था। मतलब बेटा जब हम रेजोनेटिंग स्टेट की बात कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट कर रहे हैं, एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ था। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। बात समझ आ गई? जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के इंटीरियर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट करेगा, जो रिजल्टेंट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का। पल्ले पड़ी बात? अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। बात समझ आई? क्योंकि इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है इन मैग्नीट्यूड, ये हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होने वाला है। पल्ले पड़ गई बात? यहां तक बात समझ आई? जल्दी से कॉपी कर ले। और बेटा आज जो वर्ड्स में बोल रहा हूं, रनिंग में वीडियो मत देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स हैं, जो मैंने टेस्ट अपलोड किया हुआ है, अभी तक बेटा टेस्ट नहीं आया मेरे पास। कुछ स्टूडेंट्स का तो आ चुका है, बाकियों का नहीं आया है। तो जिनका नहीं आया मैं उन्हें कह रहा हूं,
स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल वाले बेटा धड़ाधड़ कोर्स को भगाएंगे, तब समझ में नहीं आएगा, वीडियोस देखने का भी टाइम नहीं रहेगा। तो ये जो अभी आप लापरवाही कर रहे हैं ना, छोड़ दें, टेस्ट रेगुलर बेसिस पर दें, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स आएंगे, तो रनिंग में वीडियो मत देखना, ध्यान से सुनना और रजिस्टर पे नोट कर लेना। चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। डन। तो अब ध्यान से देखें, डाइलेक्ट्रिक के बाहर, डाइलेक्ट्रिक के बाहर तो स्टूडेंट्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक के बाहर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और डाइलेक्ट्रिक के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर EA अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वेक्टर EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू polarization, vector E reduced value of electric field, reduced value of electric field inside the dielectric। समझ आ गई बात? ओके। और ये आपका फिगर 4th है, फाइनल फिगर है। डन। अब ध्यान से देखिए, दिस वेक्टर E is the resultant of applied electric field and electric field due to polarization। ओके। इन मैग्नीट्यूड जब बात करेंगे तो we can say that it is EA minus of EP। Got it? Vector E is the reduced value of the electric field बोलते हैं। समझ आ गया? जल्दी से कॉपी करें। यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एक बार दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, और एग्जाम्स में 1 मार्क में आता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये आए तो जो अभी डिफाइन कर रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। जो कूलम्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन दी थी वो नहीं लिखनी है। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। डन। डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट इट? समझ आ गई बात? पल्ले पड़ रही है बात? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the dielectric medium can be defined as the ratio of the applied electric field
to the reduced value of electric field inside the dielectric substance. ओके, डिनोट कर रहे हैं के से EA डिवाइडेड बाय E. पल्ले पड़ गई बात. रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जल्दी से कॉपी करें. इट इज ऑल फॉर टुडे. बस आज इतना ही करेंगे.